Okay, so guys, what all things have we covered in previous class? So in the previous class, we have discussed about setting up a VPN and how through that we can access a private uh, we can access a private I through we can access a virtual network through a private network. And VPN is of two type: point to site VPN and site to site VPN. And we have discussed how through Azure data center we are connected the through gateway subnet. We have connected the uh, private device. And after for that we have created two root certificate, which will be of VPN gateway, and client certificate, which will be of the client device. And through PowerShell we generated the root and client certificate. And we have connected the private server using point to site connection VPN server. And after that we have discussed about uh, how we can connect multiple devices to a single gateway. For that we have connected two virtual network, and we have created one gateway subnet for only one virtual network, which we have connected. Both the virtual network are connected through one virtual machine. And after the connection of one of the virtual network through gateway subnet, both the connections established, and the private server can be accessed now. Okay, and that much only. Yes, sir. We have not discussed about gateway transit and all those stuffs where Yes, we sir. have. Yes, sir. We have discussed that. Sorry, sir. So we have also discussed about your gateway transit, where we have seen, how can we connect to a single VPN. Okay, when we have multiple networks in place, how can we connect those multiple networks with a single VPN? Okay, so there we have seen that, inside VPC peering and all those stuffs, we have to, enable your gateway. We have to enable your gateway transits over, right? So whenever we used to means there was some sorts of things related to your virtual network gateway, so we have to enable those options over there. So we have seen that how can we enable those things, and we have also seen how can we generally connect to multiple networks using a single VPN. So that is the industry use case. Okay, we have to do in that way only. Okay. And there will be a scenario which you will be facing into the industry where you have to work into this way. Okay, so that's fine. So now we'll be talking more about your other type of VPN, which I was talking about in previous class also, that is your site to site. Okay, so when you will go to industry, so ये भी चीजें आएगा. Okay, so let me just draw the diagram and let me make you understand. Let me use paint. Okay, so देखो अब ये site to site VPN connectivity क्या है? Okay, let us try to understand it. What happened? Okay, so we'll draw it. So generally क्या होगा? Suppose मेरे पास एक virtual network है. Okay, what do I have? I have a VNet. Okay, तो चलो इसका नाम दे देते हैं VNet. VNet 1. ओके, सो मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क होगा और हो सकता है उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल सबनेट्स होंगे. सो मे बी दिस विल बी योर सबनेट 1, दिस इज गोइंग टू बी योर सबनेट 2. ओके, सो मेरे पास दो सबनेट है सपोज. सो दिस इज गोइंग टू बी माय सबनेट 1. फाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय सबनेट 2. फाइन. अब मान लो कि मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, सो दिस इज माय ऑन प्रेमिसेस सेटअप. सपोज ये मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. सपोज दिस इज माय ऑफिस इटसेल्फ. ओके, दिस इज माय ऑफिस, एंड ये मेरा
ऑफिस है तो कहाँ पे ये मेरा सेटअप होगा? दिस इज ऑन टू माई ऑन प्रेमिसेस, राइट? तो ये मेरा ऑन प्रेमिसेस सेटअप है सपोज। जब ऑन प्रेमिसेस सेटअप हम लोग करते हैं ना, तो जस्ट लाइक हम अपने डेटा सेंटर, सोचो कि हम अपने लोकेलिटी में, अपने ऑन प्रेमिसेस में हम सेटअप करना चाह रहे हैं। ओके, सो ये मेरा एक ऑन प्रेमिसेस का सेटअप होगा। ऑन प्रेमिसेस सेटअप में भी क्या होगा, ये मेरा पूरा नेटवर्क होगा, और नेटवर्क के अंदर आई विल बी हैविंग योर मल्टीपल, दिस वन, मल्टीपल सबनेट्स। वहां पर भी होगा मल्टीपल सबनेट्स, फाइन, क्योंकि जो चीजें हम ऑन प्रेमिसेस में कर सकते हैं, एवरीथिंग आई कैन डू ऑन टू द क्लाउड, बट विथ मोर एडवांसमेंट। तो ये मेरा एक ऑन प्रेमिसेस सेटअप है। एंड देन अगेन आई हैव अनदर सबनेट्स ओवर देयर। सो सपोज इसका नाम दे रहे हैं ऑन प्रेम सबनेट 1, S1। ओके, ऑन प्रेमिसेस सबनेट 1। इसका नाम दे रहे हैं ऑन प्रेम सबनेट 1, या फिर ऑन प्रेम S1। ओके, ये मेरा ऑन प्रेमिसेस का सबनेट 1 हो गया। एंड देन अगेन आई विल बी हैविंग माय ऑन प्रेमिसेस सबनेट 2। ठीक है, दैट्स फाइन। अब क्या होगा कि सपोज ये मेरा ऑफिस का नेटवर्क है। ओके, दिस इज माय एंटायर ऑफिस नेटवर्क, और यहाँ पे मेरा 2 सबनेट रखा हुआ है। एंड वेन एवर अ एम्प्लॉयज विजिट टू द ऑफिस, वो क्या करेगा, अपने ऑफिस में जाकर के बैठेगा। सो दे विल बी सिटिंग इन योर ऑफिस, एंड वो ऑफिस में बैठ करके वो क्या करेगा, मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब बताओ, कोई अगर मेरे पास अगर मेरे पास एम्प्लॉय है, एंड दैट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज सपोज लेस देन 10, तो दैट इज फाइन। हम वीपीएन गेटवे वगैरह कॉन्फ़िगर करके सबके सिस्टम में वीपीएन क्लाइंट वगैरह इंस्टॉल कर देंगे, एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट, राइट? बट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में क्या होगा ना, यू विल सी कि कोई कोई कंपनी का स्ट्रेंथ होगा सपोज 5,000, कोई कंपनी का स्ट्रेंथ होगा सपोज 500। सो डू यू थिंक कि सबके सिस्टम में क्लाइंट को इंस्टॉल करना विल बी फिजिबल? नो। सो वेनेवर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, जब भी कंपनीज के ऑन प्रेमिसेस एरिया में जाते हैं, तो ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। हम भी अपने ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, हम जब अपने ऑफिस में जाएंगे तो हम अपने ऑफिस का वाईफाई को कनेक्ट करेंगे, करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पर भी जब भी कोई बंदे जाएंगे अपने लैपटॉप लेकर के भी, तो वो ऑफिस के नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, तो ऑफिस के वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। तो योर आईपी एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ योर नेटवर्क। ओके, जैसे अभी मेरा क्या है ना, कि सपोज आई एम कनेक्टेड टू माय वाईफाई। देखो, इफ आई शो यू, आई एम कनेक्टेड विथ माय वाईफाई। तो ये मेरा क्या है, इंजीनियर्स टेक 5G, ये मेरा नेटवर्क का नाम है। ओके, एंड इफ आई गो ओवर हियर, एंड इफ आई डू व्हाट इज माय आईपी, तो देखो यहाँ पे मेरे को ये आईपी दे दे रहा है। क्या है ये आईपी? सो व्हेन आई क्लिक ओवर हियर, सो यहाँ पे देखो, ये एसबीसी केबल नेट, ये महाराष्ट्र रीजन में है, एंड दिस इज माय आईपी एड्रेस। ओके, दिस इज माय आईपी एड्रेस। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई स्विचिंग माय नेटवर्क। अभी अभी थोड़ा सा देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अपने सेल फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर हियर, यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? Yes, sir. ओके, अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने नेटवर्क से कनेक्ट। यू कैन हियर मी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी देखो, व्हेन आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज, व्हाट इज माय आईपी, यू सी मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो गया। दिस इज माय अनदर आईपी। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम योर रिलायंस जियो इन्फो कम्युनिकेशन, राइट? सो इट इज फ्रॉम माय मोबाइल। तो अभी देखो, इसका आईपी नोट करके रखो, हाँ, 243.71। ओके, व्हेन आई विल कनेक्ट टू माय this network, this is 243। okay,
देखो अभी मेरा आईपी क्या है 41.28, पहले क्या था 243.71, ओके। और अभी क्या है मेरे पास 41.28 इज द आईपी एड्रेस, और ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखा रहा है कि वेयर आई एम इच, राइट। सो ये मेरा आईपी एड्रेस क्या होगा, दिस इज दिस इज एसोसिएटेड विथ नेटवर्क। तो अभी देखो हम जब भी ऑफिस के नेटवर्क में जाएंगे, ऑफिस का वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, व्हेनेवर आई विल बी कनेक्टिंग विथ माय ऑफिस वाईफाई नेटवर्क, तो फिर जाकर के क्या होगा, वो मेरे को उस पर्टिकुलर नेटवर्क के सराउंडिंग में ले लेगा। मीन्स अगर कोई भी दूसरा और बंदा आता है, इफ दे ट्राई टू कनेक्ट टू ऑफिस वाईफाई, तो वो भी उस नेटवर्क के घेरे में आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा ऑन प्रेमिसेस का पूरा सेटअप है, एंड जब भी कोई भी एम्प्लॉय आते हैं तो वो ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, देन उनका आईपी क्या हो जाता है, वो जब ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो फिर दे आर एबल टू शेयर द रिसोर्सेज डायरेक्टली, राइट। ये क्या कर सकते हैं, अपना रिसोर्सेज को यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर नाउ इनटू द सेम नेटवर्क। इट इज लाइक कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, और इट इज जस्ट लाइक कि मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है, एंड वो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना लिए, तो अगर वहां पे एक और वर्चुअल मशीन आ जाएगा तो दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट, व्हाई, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू अ सेम नेटवर्क, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये ऑन प्रेमिसेस का सेटअप है, तो यहाँ का जो भी नेटवर्क होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, दो डिफरेंट सबनेट होंगे जहां पे उनका अपना कुछ सर्वर्स वगैरह होंगे। तो जब भी हम ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, व्हेन आई विल बी कमिंग टू माय ऑन प्रेमिसेस, तब क्या होगा, आई विल बी एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट टू माय सोर्स, मींस आई विल बी एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट टू माय सर्वर्स, व्हाई, बिकॉज हम लोग एक नेटवर्क में आपस में आ रहे हैं, दैट इज फाइन। अब बताओ, कोई कंपनी का स्ट्रेंथ होगा 500, कोई कंपनी का स्ट्रेंथ होगा 5000। अब ये 500 5000 जो बंदे हैं, डू यू थिंक कि दे विल बी लाइक कि मेरे को एक एक क्लाइंट इंस्टॉल कर दो, उसके बाद आई विल बी डूइंग दैट, आई विल बी एबल टू एक्सेस द प्राइवेट सर्वर्स विच आर केप्ट इनसाइड माय एज्योर? नहीं। तो कंपनी में क्या बोलते हैं कि ये आपका एक साइट हो जाता है, दिस इज योर साइट वन। कौन सा साइट? साइट वन, दिस इज योर एज्योर साइट, एज्योर साइट, ओके। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, ये बोलते हैं कि ये आपका हो जाता है साइट टू। साइट टू कौन सा साइट है ये भाई? ये मेरा ऑन प्रेम साइट है, ओके, ऑन प्रेम साइट। तो मेरे पास साइट वन इज योर एज्योर साइट, साइट टू इज योर ऑन प्रेम साइट। तो मेरे को कुछ ऐसा सेटअप करना है ताकि हम लोग क्या कर सके कि विदाउट द यूज ऑफ योर वीपीएन क्लाइंट, क्या, विदाउट द यूज ऑफ द वीपीएन क्लाइंट, आई विल बी एबल टू एक्सेस द प्राइवेट रिसोर्सेज फ्रॉम देयर, राइट। तो हमको कुछ तो सेटअप करना पड़ेगा, तो हम लोग सेटअप करते हैं यहाँ पे साइट टू साइट कनेक्टिविटी। तो साइट टू साइट जब कनेक्टिविटी सेटअप होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वी यूज टू क्रिएट योर वीपीएन गेटवे ओवर देयर, सॉरी, एक गेटवे सबनेट हम लोग बनाते हैं, राइट, जैसे पिछले बार हम लोग बनाए थे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर गेटवे सबनेट, गेटवे सबनेट, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये मेरा दो डिफरेंट सबनेट हुए, एक और हम क्या क्रिएट करते हैं, गेटवे सबनेट, एंड देन वी यूज टू क्रिएट अ वीपीएन गेटवे। क्या क्रिएट करते हैं, वीपीएन गेटवे, जो पिछले बार किए थे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी माय वीपीएन गेटवे। सो ये मेरे पास एक वीपीएन गेटवे कॉन्फ़िगर कर देंगे, एंड वी विल बी एसोसिएटिंग दिस वीपीएन गेटवे विथ योर दिस पर्टिकुलर सबनेट, गेटवे सबनेट, और ये वर्चुअल नेटवर्क के साथ एसोसिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये गेटवे सबनेट को यहाँ से ले लेगा, जो कि पिछले लैब में जो किए होंगे उनको अभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो वंस दिस इज डन, तो फिर क्या होता है ना, जनरली इंडस्ट्री में जब जाओगे, सो यू विल सी दैट ये जो मेरा ऑन प्रेमिसेस का सेटअप होता है ना, जैसे हम यहाँ पे वीपीएन गेटवे वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं ना, उसी हिसाब से ऑन प्रेमिसेस में भी एक गेटवे होता है। क्या होता है, एक गेटवे होता है। तो ये गेटवे क्या होता है ना, पब्लिक आईपी एलोकेटेड होता है। ये गेटवे पे क्या होता है, पब्लिक आईपी एलोकेटेड होता है। सो वी हैव अ पब्लिक आईपी ओवर हियर, ओके। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसे कि सपोज करो जितने भी मेरे पास यहाँ पे सर्वर्स वगैरह होंगे, वो इंटरनेट को जाएंगे वाया विच आईपी, वाया दिस पर्टिकुलर आईपी,
ओके, सो एक कॉमन आईपी होगा। सो ये किसी से भी पूछोगे, इफ दे वांट टू हैव योर साइट टू साइट कनेक्टिविटी, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा पता है कस्टमर से? सो सर गेटवे का आईपी डायनामिक है कि स्टैटिक है? ओके, तो वी कैन integrate your site, we can configure your site to site connectivity with the help of what, with the help of your static IP। तो यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी उसके पास होना चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, स्टैटिक आईपी मान लीजिए, स्टैटिक पब्लिक आईपी आई विल बी आस्किंग टू देम। ओके, एंड उसके बाद फिर जाकर के हम क्या करेंगे, वो पब्लिक आईपी मेरे को देगा, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल नेटवर्क गेटवे। क्या बोलते हैं? लोकल नेटवर्क गेटवे। अभी सब नया नया टर्म है, कंफ्यूजिंग लगेगा, बट डू नॉट वरी, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सेटअप इनटू द इंडस्ट्री आल्सो। ओके, थोड़ा थोड़ा स्टडी करने से सब हो जाएगा क्लियर। लोकल नेटवर्क गेटवे। ओके, सो यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क गेटवे होता है। अब मान लो ये एज्योर नेटवर्क को पता कैसे चलेगा कि कौन से ये पर्टिकुलर नेटवर्क को हमको एक्सेस करना है, राइट? तो ये लोकल नेटवर्क गेटवे हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड ये लोकल नेटवर्क गेटवे पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो आईपी होता है ना, ये जो स्टैटिक आईपी होता है ऑन प्रेमिसेस का, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? तो यहाँ पे पब्लिक आईपी को हम लोग डालते हैं, स्टैटिक पब्लिक आईपी। कहाँ का? ऑन प्रेमिसेस का स्टैटिक पब्लिक आईपी को डालते हैं, एंड वाया इंटरनेट, ओके, वाया इंटरनेट ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाता है। ओके, अभी ये कनेक्टेड होता है इससे, एंड ये कनेक्टेड होता है इससे। तो अगर मान लो कि मेरे को यहाँ पे क्या करने, मेरे को सेटअप करने, कोई भी बंदा आएगा, वो कैसे मेरे एज्योर नेटवर्क के कोई भी प्राइवेट सर्विस को कनेक्ट करेगा? सो दे यूज्ड टू गो अहेड विथ योर स्टैटिक आईपी, और ये स्टैटिक आईपी फिर ये गेटवे के थ्रू, दिस इज माय गेटवे, ओके, ये गेटवे के थ्रू, लेट मी राइट ऑन प्रेम गेटवे, ऑन प्रेम गेटवे। ओके, सब ये क्या होता है, ये मेरा ऑन प्रेमिसेस गेटवे होता है। लेट मी जस्ट, क्या होता है, ओके, तो देखो ये मेरा, ये जो भी मेरे पास ऑफिस एम्प्लॉयज होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, मेरे ऑन प्रेमिसेस गेटवे के स्टैटिक आईपी के थ्रू बाहर वो इंटरनेट को जा सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू वो क्या होगा, लोकल नेटवर्क गेटवे जो कि मेरे एज्योर नेटवर्क से एसोसिएटेड होंगे, वहां पे लिखा रहेगा कि मेरे को रिस्पॉन्स किससे लेना है। सो वी हैव टू असाइन यू स्टैटिक आईपी, दिस इज स्टैटिक आईपी ओवर हियर। ओके, देयर कैन बी चैलेंजेस आल्सो। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मेरे पास सपोज 2 सबनेट नहीं है, 5 सबनेट। अब ये पांचों सबनेट के रिसोर्सेस को भी मान लो मेरे को इसके साथ इंटीग्रेट करने हैं, या फिर हम चाहते हैं कि जो सेकेंड वाला जो रिसोर्स है ना, दे शुड नॉट बी एबल टू, अगर कोई ये सबनेट के रेंज में आता, दे शुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू माय रिसोर्सेस, राइट? ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो। सो देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोस जहां पे हमको सारे सबनेट को भी एक्सेस देना है। ओके, कोई भी बंदे अगर मान लो एज्योर नेटवर्क में भी है, सो दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू देयर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क, राइट? या फिर कोई ऑन प्रेमिसेस में है, दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू योर एज्योर नेटवर्क। ऐसे डायरेक्टली बोथ वेज में ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड दूसरा चीज इसका क्या, कि अगर मेरे को रिस्ट्रिक्शन देने हैं कि नहीं, अगर ये जो ऑन प्रेमिसेस का नेटवर्क है ना, इसमें जो सबनेट वन है, सबनेट सबनेट वन को ही एक्सेस दो, सबनेट टू के अंदर के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं देना है, right? So all those kind of restrictions also we can put, and we can configure inside your local network gateway। ये local network gateway is the main part। ये local network gateway किसके साथ associated होगा? VPN gateway के साथ। and then फिर जाकर के ये किसके साथ associated होगा? to your virtual network, और उसके साथ ये gateway subnet के साथ associated। okay, तो अल्टीमेटली whenever we will do such kind of configuration, इस टाइप का जब भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, तब we will be able to connect your from one site to another site, or from one particular network to another particular network। तो अगर ओवरऑल अगर बताया जाए, सो व्हाट इज साइट टू साइट कनेक्टिविटी? सो इट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन योर टू डिफरेंट साइट। ओके, अभी रिसेंटली वी हैव बीन डूइंग अ प्रोजेक्ट, ओके, जिसमें हम लोग साइट टू साइट भी कॉन्फ़िगर किए थे। ओके, एंड क्या क्या क्वेश्चन कस्टमर से पूछने पड़ते हैं, आई विल बी टेलिंग यू, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू दैट पर्टिकुलर मेल, ओके, जिसमें वो लोग इंफॉर्मेशन दिए थे रिगार्डिंग योर वेरियस साइट।
Okay, so let me see if I have that mail, then I'll show you कि वो लोग कैसे आपको गेटवे का आईपी दिए थे, and they have also given the subnet details कि कौन कौन से सबनेट को अलाउ करना है. So let me show you that. Let me pause sharing. If I have that, I'll just show that to you. I think I have. Let me see. What Just allow me a minute, guys. वो दिखा देंगे ना तो every doubt of yours will be cleared. Yes. तो I'll resume my sharing now. तो देखो यहाँ पे क्या ना, यू सी वी हैव डन द एज़्योर साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोग अपने साइट से किए थे. ओके, सो दिस इज माय मेल. ओके, सो एज़्योर का साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन किए थे. कस्टमर हैज ऑन प्रेमिस सेटअप इन चेन्नई एंड हैज शेयर्ड द बिलो डिटेल्स. तो ये देखो चेन्नई ऑफिस का उसका एक फायरवॉल लगा हुआ था, उसका गेटवे का आईपी क्या था, दिस वे द गेटवे आईपी. ओके, एंड उसको कौन कौन से सबनेट्स पे एक्सेस चाहिए थे, इनटू दिस सबनेट्स. एक चेन्नई और ऑफिस था, उसमें उसका एक जो भी डायनामिक था. ओके, सो वी डू नॉट हैव एनी स्टैटिक आईपी फॉर दैट. तो डायनामिक के लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वी नीड टू हैव अ स्टैटिक आईपी. ओके, सो फिर हम लोग इसके लिए कनेक्ट किए थे. देखो ये डायनामिक आईपी वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द स्टैटिक आईपी. जैसे ये नेट मैजिक का एक था, तो उसका हम लोग ये जो साइट, ये एक मींस आईपी जो था हमारे पास यहाँ पे, सो ये आईपी को हम लोग क्या किए थे, दिस वाज माय स्टैटिक आईपी, एंड ये पर्टिकुलर सबनेट पे हमको एक्सेस देना. ओके, सो दिस शुड बी योर पब्लिक आईपी. ओके, सो ये लोग क्या किए थे, ये सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग को दिए थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव कॉन्फ़िगर्ड साइट टू साइट कनेक्टिविटी. ओके, तो इसमें ये लोग क्या दे दिए थे मेरे को, ये गेटवे का आईपी दे दिए थे, और यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस, कौन से ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क पे मेरे को, सबनेट्स पे मेरे को अलाउ करने हैं एक्सेस. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक मेरा वर्चुअल नेटवर्क हुआ एज्योर साइट का, एंड दूसरा मेरा कौन सा नेटवर्क हुआ, ऑन प्रेमिसेस साइट का. तो अगर हमको कॉन्फ़िगर करना है साइट टू साइट कनेक्टिविटी, देन व्हाट ऑल थिंग्स हैव इज नीडेड टू बी डन. सबसे पहले मेरे को पूछना है कि कौन से नेटवर्क के साथ आपको ऑन प्रेमिसेस का नेटवर्क को कनेक्ट करना है. सो दे विल बी डेफिनेटली टेलिंग कि मेरा वीनेट 1 के साथ मेरे को ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को कनेक्ट करना है. दैट इज फाइन. उसके बाद फिर जाकर के हम लोग को क्या पूछना है कि आपका गेटवे का पब्लिक आईपी मेरे को चाहिए. सो आपका ऑन प्रेमिसेस का गेटवे का जो भी पब्लिक आईपी होगा ना, दैट आई वांट, दैट शुड बी स्टैटिक आईपी. ओके, तो वो पब्लिक आईपी दे देंगे. ओके, एंड देन आई नीड टू आस्क द वेंडर आल्सो कि भाई आपका जो ये ऑन प्रेमिसेस का जो सेटअप है, ये जो गेटवे आप लगाए हो,
ये जो पूरा नेटवर्क है इसका फायरवॉल, इसका वेंडर कौन है, जैसे बहुत सारे नेटवर्क वेंडर होते हैं, जैसे हमारे पास आता है सिस्को आता है हमारे पास, फिर बहुत सारे आते हैं, इसका कौन सा था देखो, सोफोस का था इसका, राइट। तो सोफोस है, सिस्कोस है, बहुत सारे हैं। ओके, सो मेरे को वो पूछना है कि आपका यहाँ पे मीन्स कौन सा यूज करते हो। ओके, सो अगर मान लो उसका कोई थर्ड पार्टी वाला है, जैसे सिस्को नहीं है, वो सोफोस नहीं है, कोई दूसरा वाला वेंडर है, देन वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो कि उसको भी कैसे कनेक्ट किया जाए। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आपको कौन से एज्योर साइट के नेटवर्क के साथ आपको साइट टू साइट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना है, तो वो बता देगा वीनेट 1 के साथ कनेक्ट करना। फिर पूछेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका ऑन प्रेमिसेस में गेटवे का पब्लिक आईपी अपने को चाहिए, एंड मेरे को सबनेट का डिटेल्स चाहिए, कौन कौन से सबनेट्स आपके हैं वहां पे, एंड ऑल दो सबनेट डिटेल्स आई वांट। एंड अगेन आपके वेंडर्स कौन है। ओके, हु इज योर वेंडर ऑन प्रेमिसेस में, आप किसका फायरवॉल सेटअप करके रखे हो, ये जो गेटवे है वो किनका है, सिस्को का है, सोफोस का है, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव यूज्ड, तो वो बता देगा। अगर वो कुछ ऐसा चीजें बोलेगा जो कि जेनरिक नहीं होगा, तो वी विल बी गोइंग अहेड विद अ जेनरिक पार्ट। ओके, हम बताएंगे कैसे उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल जो वर्चुअल नेटवर्क होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, गेटवे सबनेट बनाएंगे, एंड गेटवे सबनेट बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, एक वीपीएन गेटवे डिप्लॉय करेंगे, एंड वीपीएन गेटवे को हम लोग किसके साथ एसोसिएट करेंगे, ये वर्चुअल नेटवर्क के साथ। जैसे एसोसिएट करेंगे तो मेरा ये वीपीएन गेटवे विल बी एसोसिएटेड विथ योर गेटवे सबनेट, एंड देन वी विल हैव टू डिप्लॉय अ लोकल नेटवर्क गेटवे, एंड ये लोकल नेटवर्क गेटवे को हम लोग को एसोसिएट करना पड़ेगा वीपीएन गेटवे के साथ, एंड देन वी नीड टू असाइन द पब्लिक आईपी ऑफ द गेटवे। ये जो पब्लिक आईपी है ना गेटवे का ऑन प्रेमिसेस का, उसको यहाँ पे हम लोग को फिट करना पड़ेगा अलोंग विद द सबनेट डिटेल्स, वो सबनेट डिटेल्स यहाँ पे फिट करेंगे। जैसे ही फिट कर देते हैं ना, तो एज्योर के साइट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एज्योर साइट कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो ये मेरा पूरा एज्योर साइट यहाँ तक मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, राइट। और बीइंग अ क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर, हमको यहीं तक का पोर्शन देखना है। ओके, जैसे ही हम लोग ये पोर्शन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ओके, व्हेनेवर वी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर दिस एंटायर पोर्शन, उसके बाद फिर हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। ओके, वी यूज टू डाउनलोड दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और हम लोग किसको दे देते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई तेरा जो नेटवर्क इंजीनियर है ना, उसको बोलो कि अपने एंड से नाउ एक अनदर साइट को, जो कि उनका ऑन प्रेमिसेस साइट है, दे विल कॉन्फ़िगर देयर साइट, मतलब इतना पोर्शन योर नेटवर्क इंजीनियर इज गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग, राइट। तो फिर इसमें हम लोग मदद कर सकते हैं, वी विल बी हेल्पिंग विद द एंटायर डिटेल्स, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह देते हैं, एंड वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसा दिखता है, ओके, आई विल शो यू। सो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस हिसाब का दिखता है। ओके, सो हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कस्टमर को दे देते हैं, एंड देन कस्टमर क्या करता है, अपने एंड से ये साइट को पूरा पूरी अपने एंड से कॉन्फ़िगर करता है। कहाँ गया यार, यस, ये पूरा साइट को कस्टमर कॉन्फ़िगर्स दैट। जैसे ही वो कॉन्फ़िगर कर देता है, तो मेरा टनल क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। तो इट मीन्स कि अब कोई भी यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब अगर मान लो कोई मेरा ऑफिस नेटवर्क के अंदर आता है, एनीबॉडी कम्स इनसाइड माय ऑफिस नेटवर्क, और अगर मान लो उसको यहाँ के सर्वर को एक्सेस करना है, सो विदाउट वीपीएन क्लाइंट आल्सो दे विल बी एबल टू एक्सेस। क्यों, क्योंकि हम लोग एक टनल क्रिएट कर दी। सो दिस इज द टनल, हम लोग एक टनल क्रिएट कर दिए, विद द हेल्प ऑफ दिस टनल they are directly able to connect. Okay, so this is the beauty of using your as your site to site. Okay, so making sense guys, कुछ clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so let me save it to your site to site. Okay, तो अभी क्या करते हैं ना, we'll try to set up this। हम लोग एज्योर साइट में क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑल दोस थिंग्स वी विल बी टेलिंग यू। कैसे कस्टमर से क्या रिक्वायरमेंट लेना वो तो हम बता ही दिए क्या रिक्वायरमेंट लेना। नाउ विल बी कॉन्फ़िगरिंग द एंटायर पार्ट, कैसे ये सेटअप को कॉन्फ़िगर करते हैं इनटू योर एज्योर पार्ट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू कम ओवर हियर, एंड मेरे को क्या करना, portal.azure.com। यस, तो अभी क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप देख लेते हैं मेरे पास कुछ ऑलरेडी है क्या। सो इफ आई कम ओवर हियर, सो आई डू नॉट हैव एनी रिसोर्स ग्रुप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं।
सो यहाँ पे हम देते हैं S2S RG। ओके, सो S2S रिसोर्स ग्रुप हम ऐसे बनाए हैं एंड इसको हम ले लेते हैं सेंट्रल यूएस। ओके, TV1 क्रिएट, I'll do a create। तो ये मेरा एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले देखो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अ एज़्योर साइट। ओके, तो मेरे यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क है, तो आई विल क्रिएट माय वर्चुअल नेटवर्क ओवर हियर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल नीड टू गो टू वर्चुअल नेटवर्क्स, क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। तो ये रिसोर्स ग्रुप कौन सा, S2SRG। ये वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या दे देंगे हम, सपोज S2S VNet। ओके, S2S VNet कहाँ पे, सेंट्रल यूएस। नेक्स्ट आईपी एड्रेस, अब इसको कौन सा आईपी एड्रेस ये इसी का दे देते हैं, ये डिफॉल्ट वाले को रिमूव कर देते हैं, सबनेट एक ऐड कर देते हैं। सबनेट का नाम क्या देते हैं, S2S सबनेट। ओके, एक ही सबनेट बनाते हैं एंड इसका, या फिर दो सबनेट भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम S2S जैसे डायग्राम में बनाया ना वैसे ही बनाते हैं, सबनेट -1। ओके, इसका रेंज क्या दे देते हैं, 10.0.1.0/24। ओके, आई विल डू ऐड, एक सबनेट हो गया, दूसरा सबनेट बनाते हैं। अब ये मेरा होगा S2S सबनेट -2। ओके, 10.0.2.0/24। ओके, ये मेरा सबनेट 2 हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया, सबनेट 1, सबनेट 2। I'll check security, I'll do tags, I'll do VPN create। I'll do create। ओके, तो देखो ये मेरे सबनेट का नाम क्या है, सॉरी ये वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या है, S2S VNet। ओके, आई कम ओवर हियर और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं, फाइन, S2S सब। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दो सबनेट बनाए हैं, राइट। सो ये सबनेट सेक्शन में आते हैं एंड वी हैव टू सबनेट, एक का नाम ये है, एंड कम ओवर हियर, ये है मेरा ये सबनेट 1। एंड दूसरा क्या है, दूसरा इज योर सबनेट 2। तो यही है S2S सबनेट 1 और S2S सबनेट 2। तो मेरा ये दोनों चीजें बन गया, राइट। अभी मेरे को क्या करना, सबसे पहले एक इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज बना करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज हम वो रिसोर्सेज के अंदर से बैठ के नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑन प्रेमिसेस का सेटअप नहीं, राइट। तो अभी क्या होगा, सपोज ये सबनेट है, ये सबनेट के अंदर मेरे वर्चुअल मशीन्स भी है, दैट इज फाइन, और उसमें प्राइवेट वाले वर्चुअल मशीन भी है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, सेटअप कैसे करते हैं, तो सबसे पहले विल बी डिप्लॉइंग वी विल बी क्रिएटिंग अ गेटवे सबनेट, राइट। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, ओके, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही दिस इज माय वर्चुअल नेटवर्क S2S VNet, उसके अंदर हम सबनेट सेक्शन, राइट।
यहीं पे मेरे को गेटवे सबनेट दिखेगा, राइट? सो विल बी क्रिएटिंग ए गेटवे सबनेट, और इसका रेंज ये भी दे सकते हैं 10.0.0/24, या तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली सेव करेंगे। आई विल गो अहेड विद दिस ओनली। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक गेटवे सबनेट भी बन गया। सो दिस इज माय गेटवे सबनेट, और उसका नाम क्या है? दिस इज योर नेम। ओके, तो आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल जस्ट पेस्ट दिस। सो ये मेरा हो गया गेटवे सबनेट, एंड इसको हम लोग क्या रेंज दिए? इसको क्या आईपी दिए? 10.0.0.0/60. Okay, this is the CIDR range of your subnet, of your VNet. Okay, and then /24 होगा। यहाँ पे /24, 10.0.1.0/24, ये मेरा एक सबनेट है। रविश 10.0.0, no sorry, 1.0/24. ओके, एंड यहाँ पे मेरा एक है 10.0.2.0/24. ओके, एंड देन ये गेटवे सबनेट का क्या है मेरे पास? CIDR 10.0. क्या 10.0.0.0/24. तो ये है मेरा। सो आई विल स्ट्रेच इट, तो थोड़ा सा मूवमेंट करने से हो जाए। फाइन, तो ये नेटवर्क का रेंज भी हम डिफाइन कर दिए, एंड दिस इज व्हाट वी हैव नाउ डिप्लॉयड। ओके, अभी फिर क्या करना है मेरे को? ये VPN गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, राइट? एंड देन आई हैव टू बाइंड दिस VPN गेटवे विद माय गेटवे सबनेट। तो यहाँ तक तो काम हो जाएगा, और इसके अंदर रिसोर्सेज भी डिप्लॉय कर दो, दैट्स फाइन। ओके, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे डिप्लॉय करना। तो आई विल गो टू योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज। अभी क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ओके, यहाँ पे देखो इसका नाम क्या रहेगा? सो हम बोल रहे S2S क्या VNGW। ओके, VNGW वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ओके, कहाँ पे? सेंट्रल US। और ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? VPN एक्सप्रेस राउट के बारे में बताएंगे। एंड देन अगेन वी नीड टू चूज योर VPN गेटवे 1 जनरेशन 1, एंड देन यहाँ पे कौन से वर्चुअल नेटवर्क? S2S VNet के। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा? गेटवे सबनेट को यहाँ पे ले लेगा। ओके, अब यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस, बेसिक और स्टैंडर्ड। आई विल कम टू बेसिक एंड स्टैंडर्ड डिस्कशन टुडे। ओके, हम बताएंगे इसके बीच में डिफरेंस और भी क्या क्या होता है। तो इसको पब्लिक IP एड्रेस चाहिए, राइट? हम बोले तो VPN गेटवे जो होता है इसको पब्लिक IP एड्रेस चाहिए होता है, पिछले बार भी बताए थे। तो हम क्या दे रहे हैं? S2S VPN गेटवे IP। ओके, सो ये पब्लिक IP हो जाएगा उसका। आई क्लिक ऑन टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये क्या होगा? मेरा एक VPN गेटवे क्रिएट करेगा, एंड एज इट इज गोइंग टू टेक अराउंड 45 मिनट 30 minutes of time, around 25 to 30 minutes of time इसको लगेगा कॉन्फ़िगर। तो जब तक ये कॉन्फ़िगर होगा, लेट मी सी इफ वी कैन कॉन्फ़िगर योर लोकल नेटवर्क गेटवे और नॉट। सो लोकल नेटवर्क गेटवे पे आना है। ओके, कम टू दिस पॉइंट। तो अभी ये मेरा डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, क्या? VPN गेटवे का। ओके, जब ये लोकल नेटवर्क गेटवे पे आते हैं ना, सो वी हैव कॉन्फ़िगर्ड दिस VPN गेटवे। अभी ये गेटवे को कनेक्ट कर दिए VNet के साथ। अब लोकल नेटवर्क गेटवे पे आते हैं। ओके, सो क्रिएट लोकल नेटवर्क गेटवे। यहाँ कौन सा रिसोर्स ग्रुप? S2SRG। नेम क्या रहेगा इसका? हम बोल रहे हैं कि S2S लोकल नेटवर्क गेटवे। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? IP एड्रेस या फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। देखो
इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी देखो हम जो बताए थे ना कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टैटिक आईपी मिलेगा, किसको, गेटवे को। अगर यहाँ पे कोई डायनामिक आईपी होता है, ओके, तो कस्टमर बोलेगा कि नहीं मेरे को डायनामिक आईपी है, तब मेरे को आप कुछ सॉल्यूशन निकाल के दो। तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है, आप ये जो डायनामिक आईपी है ना, तो आप मेरे को फुल्ली क्वालिफाइड एक डोमेन नेम दो। तो एक डोमेन नेम अगर वो मेरे को देता है, तो डोमेन नेम से उसका आईपी मैप्ड होगा। तो हमेशा अगर बैकएंड में उसका आईपी चेंज होगा, डोमेन नेम थोड़ी चेंज होगा। तो डोमेन नेम को अगर हिट करेंगे तो बैकएंड का अगर आईपी चेंज हो गया तो बैकएंड का वो आईपी को हिट कर देगा, राइट। तो अगर वो बोलता है कि मेरे पास डायनामिक आईपी है, ओके, या फिर मेरे पास आईपी है विच इज गोइंग टू चेंज, दैट इज अ डायनामिक आईपी, तब फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, आप मेरे को एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दो, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्फ़िगर योर दिस नेटवर्क। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है, एंड पॉइंट क्या है मेरा, आईपी एड्रेस है कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो अगर फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है तो वो डोमेन नेम यहाँ पे दो, अदरवाइज हम क्या मांगेंगे, आईपी एड्रेस। तो सपोज हम ना यहाँ का एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेके चलते हैं कि ये मेरे पास कुछ है 55 डॉट 62 डॉट 103 102 डॉट 56, ओके, ये मेरा एक आईपी है। okay? या फिर हम इसी का नेटवर्क का आईपी लेकर के चलते हैं कोई एक। सो सपोज करो ये आईपी है, इट इज योर 103.59 187 100, ओके, चलो वही आईपी ले लेते हैं, 103 डॉट 103.59 187 59.187.18, ये मेरा पब्लिक आईपी है। एंड देखो ये एक ही आईपी होगा, ये क्या बोल रहा है, /30, राइट। तो इसके अंदर के दो नेटवर्क रेंज मेरे पास अलाउड होंगे, सो दैट इज फाइन, हम ये आईपी एलोकेट कर दिए, ओके। सो ये आईपी को ही हम क्या करेंगे, ये इधर से उठाएंगे एंड देन आई विल कम ओवर हियर, हम बोलेंगे आईपी एड्रेस इज दिस वन। तो ये आईपी को, सो सॉरी इनवैलिड आईपी बोलेगा, इसको ऐसे देना, ओके। सो ये आईपी एड्रेस पे मेरे को अलोकेट करना है, ओके। अभी दैट इज फाइन, ये आईपी मेरे को मिल गया यहाँ पे, दैट इज फाइन। बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क को, कौन कौन से सबनेट को मेरे को अलाउ करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे वो डिटेल्स वगैरह भी दिया था, सो विल कम ओवर हियर। सो ये सबनेट कौन सा, 192.168.1.0/24, ओके, 2.0/24। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वो आईपी ले लेते हैं इसका। तो इसका रेंज क्या है, 192.168.1.0/24, ओके। और यहाँ पे क्या है, 192.168.2.0/24, ओके। तो ये मेरा दूसरा सबनेट का ये आईपी, राइट। अब ये दोनों आईपी भी मिल गया मेरे को, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आईपी को कॉन्फ़िगर करें। तो 192.168.1.0, तो यहाँ पे आओ, ये एड्रेस स्पेसेस मेंशन जरूरी नहीं है, अगर हम वो पूरा नेटवर्क को अलाउ करना चाहते तो कर देंगे। अगर लेकिन वो पूरा नेटवर्क के अंदर हम कुछ सबनेट्स को अलाउ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो सबनेट का डिटेल डाल, ओके। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 192.168.1.0/24। यहाँ पर भी आएंगे, क्या बोलेंगे, 192.168.1.0/24, ओके, सॉरी 2.0। सो ये दोनों एड्रेस रेंज हम यहाँ पे दे देंगे, दैट्स फाइन, ओके। अभी फिर क्या करेंगे, आई विल क्लिक टू एडवांस्ड, ओके, आई विल रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पे देखो मेरा दोनों काम हो रहा है, एक लोकल नेटवर्क गेटवे भी बन रहा है और एक मेरा यहाँ पे वीपीएन गेटवे भी बन रहा है। Once these two are done, then only we'll be able to configure the other part. अब local network gateway बन रहा है, VPN gateway बन रहा है, अब दोनों को इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा, so we'll do that integration, okay. So before that we have to wait for this one, okay. So I'll just do what, I'll pause the recording, उसके बाद फिर जाकर के हम लोग resume करेंगे when this entire part will be done, okay. Okay, so this deployment is done for this particular local network gateway, but this VPN gateway is going to take time, right? It's only 5 minutes, so we'll have to wait for more 20 minutes because before that we cannot do anything.
जब तक ये VPN गेटवे एस्टैब्लिश नहीं होगा, विल नॉट बी एबल टू डू द फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, सो विल हैव टू वेट. सो लेट pause the recording. Okay, so we have deployed this particular virtual network gateway, and local network gateway is also deployed. तो अब हम क्या करते हैं, we'll go to the resources. Okay, so ये मेरा virtual network gateway है. Okay, we'll go to connections over here. Okay, यहाँ पे एक हमारे पास connection रहेगा, and I think yes, we'll go to this connection and we'll add a connection. Okay, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा connection का नाम क्या है. Okay, so हम बोल रहे हैं it is going to be your suppose Chennai office, Chennai DC, ये Chennai DC to Azure, Chennai DC and Azure. Okay, कनेक्शन टाइप, ये कनेक्शन टाइप कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो हम मेरे पास है साइट टू साइट. ओके, सो यू नीड टू सेलेक्ट दिस वन. अब ये ऑटोमेटिकली देखो ये क्या कर लेगा, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ऑटोमेटिकली ले लेगा. ओके, एंड देन चलो अभी ये जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, ओके, उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं किसका, साइट टू साइट का. अब ये जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे किसको ले लिया, S2S VGN, राइट. अब ये किससे कनेक्टेड है, दिस S2 VGN इज कनेक्टेड टू विच वन, टू योर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, ये VNet 1 के साथ कनेक्टेड है. ओके, सो ये कनेक्शन है. अभी ये बोल रहा है इसको साइट टू साइट जो करोगे तो मेरा दूसरा साइट कौन सा होगा, तो हम बोल रहे हैं कौन सा होगा, ये मेरा टू योर लोकल नेटवर्क. लोकल नेटवर्क गेटवे में उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे हम, राइट. तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई लोकल नेटवर्क गेटवे सेलेक्ट कर. तो मेरे पास ये लोकल S2S लोकल नेटवर्क गेटवे ये जो बनाए थे, राइट. अब फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज योर PSK. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं प्री शेयर्ड की. ओके, अब मान लो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन व्हिच आई विल बी डूइंग, ये हम करेंगे तो फिर इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा आई विल बी गिविंग टू द ऑन प्रेमिसेस गाय, उधर के जो नेटवर्क इंजीनियर रहेंगे. तो अगर मेरा ये वाला किसी और के हाथ लग गया तो मतलब कि कोई मेरा कुछ हैम्पर भी कर सकता, राइट. तो हम क्या करते हैं, एक प्री शेयर्ड की बनाते. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर टाइप, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर पे जाते हैं एंड वी यूज टू क्रिएट अ प्री शेयर्ड की. तो जब वो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना अपने ऑन प्रेमिसेस पे, तो उनको एक जगह प्री शेयर्ड की डालना पड़ेगा. ओके, अब जब वो डालेंगे प्री शेयर्ड की, सो वो प्री शेयर्ड की हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे, तो जैसे वो डालेंगे तब ये कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल होगा. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये प्री शेयर्ड की डाल, राइट. लेट मी शो यू, अगर वो उनके पास अगर वो डिटेल्स होगा तो देखो ये प्री शेयर्ड सीक्रेट की उसको ये क्या कर दिए, हटा दिए, राइट. सो दिस इज यहाँ पे वो प्री शेयर्ड सीक्रेट की जो हम इधर कॉन्फ़िगर करते हैं Azure में, वहां पे उनको भी देना पड़ता है ताकि वो वहां पे डालेंगे अपने नेटवर्क में, तो फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. तो ये प्री शेयर्ड की हम लोग देते हैं. नेक्स्ट इज यू हैव टू क्लिक, दैट्स इट, अपना काम खत्म. जो Azure के एंड पे जो भी चीजें होना था दैट इज डन. अभी मेरे को क्या करना है, ओके डन. तो देखो यहाँ पे क्या है ना, स्टेटस अननोन है, राइट. तो अभी मेरे को क्या करना है, इसके अंदर जाना है. ओके, एंड यहाँ पे देखो ये है ना डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन, यू हैव टू डाउनलोड दिस. ओके, अब यहाँ पे जब ये डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो पूछेगा वेंडर का जो भी डिवाइस वेंडर कौन सा है, बताया था ना, सिस्को, जूनिपर, सेंट्रियम, ये सब हमारे पास वेंडर है. ओके, तो ऑन प्रेमिसेस में किसका सेटअप लगाया गया, मान लो उसका सोफोस का सेटअप था, राइट. तो सोफोस का तो इधर है नहीं, तो फिर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस जेनेरिक सैंपल. तो जेनेरिक सैंपल में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, सो कोई भी उसको देख करके समझ जाएगा.
डिवाइस फैमिली, ये डिवाइस पैरामीटर कुछ भी सेलेक्ट कर लो, फर्मवेयर वर्जन, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सेलेक्ट हुआ। जैसे ये डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सो ये जेनरिक सैंपल में सब आ जाता है। मान लो सिस्को से रिलेटेड है तो वी हैव टू सेलेक्ट सिस्को, ओके। अब ये सिस्को का कौन कौन सा है, दैट यू नीड टू आस्क टू कस्टमर। उसके बाद ये फर्मवेयर वर्जन, जैसे इसको सेलेक्ट कर लोगे, मे बी कुछ आ जाएगा फर्मवेयर वर्जन, देखो ये फर्मवेयर वर्जन, फिर इसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड कर लोगे। बट यहाँ पे मान लो वो चीजें नहीं है, जैसे उसका सोफोस था तो हमारे पास नहीं था, तो वी हैव टू क्लिक ऑन जेनरिक सैंपल, डिवाइस फैमिली दिस वन, फर्मवेयर वर्जन दिस वन, डाउनलोड। तो जैसे ये डाउनलोड करोगे ना, सो यू हैव गॉट द एंटायर डिटेल्स, ओके। अभी देखो ये क्या है, ये कनेक्शन का नाम है मेरा, ये वीपीएन गेटवे, जो मेरा ये जो गेटवे है ना, उसका गेटवे का डिटेल्स ये है मेरा, और उसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, इट इज योर दिस वन। सो ये मेरा जो वीपीएन गेटवे हम यहाँ पे बनाए हैं, जैसे ये मेरा गेटवे है ना, इसका पब्लिक आईपी क्या है, सो दिस पब्लिक आईपी इज दिस वन 20 दिस वन, ओके। सो दे नीड दिस डिटेल्स। तो उसी हिसाब से ऑन प्रेमिसेस होगा, ऑन प्रेमिसेस का एक गेटवे होगा, उसका पब्लिक आईपी कौन सा था, ये वाला था, विच वी हैव डन, ओके। अब उसमें कौन कौन से नेटवर्क है जिसको कनेक्ट करना है, तो देखो ये बोल रहा है कि एक नेटवर्क है, ये पूरा वर्चुअल नेटवर्क है मेरा, इसके साथ हम उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर के जितने सबनेट्स होंगे वो सब कनेक्ट कर लेगा। तो फिर ये जो ऑन प्रेमिसेस का है मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे, जो ऑन प्रेमिसेस का है, उसका पब्लिक आईपी कौन सा था, ऑन प्रेमिसेस देखो वीपीएन आईपी, ऑन प्रेमिसेस एड्रेस, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया। अब ये जो होता है ना, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। कस्टमर को अगर ये दोगे तो देखो यहाँ पे प्री शेयर्ड की भी लिखा हुआ है, राइट। एंड देन ये सारा वो लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इफ विल कम ओवर हियर, देखो ये कस्टमर भी क्या कर रहे हैं, वही सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे वो टाइप वगैरह सेलेक्ट करके सारा डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं। सो यहाँ पे वो लोग कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह रॉन्ग किए थे, जिसके कारण ये उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जैसे हैश कौन सा है, लाइफ टाइम क्या है, ग्रुप क्या है, सो ऑल दोस इंफॉर्मेशन आर ओवर हियर। प्रीशेड की क्या है, ऐसे उसका लाइफ टाइम क्या है, ओके। एल्गोरिदम कौन सा है, SHA-1 इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सा है, ये सब चीजें हैं। तो ये अगर किसी भी ऑन प्रेमिसेस जो भी वेंडर है ना, ऑन प्रेमिसेस जो भी नेटवर्क को हैंडल करते हैं, इफ यू शो देम दिस डिटेल्स, ओके, इफ यू शो देम दिस डिटेल्स, ये सब कुछ वो ऑटोमेटिक वो कर लेंगे, ओके। दे विल बी कॉन्फ़िगरिंग इट। जब वो अपने एंड से ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ना, whenever they will do the configuration from their end, तब क्या होगा, when you come to overview part, not overview, इस पे आते हो जब, तो यहाँ स्टेटस अननोन की जगह क्या हो जाएगा, स्टेटस कनेक्टेड। when status will be connected, it means कि आप कोई भी ऑन प्रेमिसेस से बैठ करके मेरे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर के जो भी रिसोर्सेज है उसको वो कनेक्ट कर सकता है, ओके। सो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू। और जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड की हो, जस्ट शेयर दोस डिटेल्स विद द कस्टमर। जैसे कस्टमर के साथ शेयर कर लोगे, वो अपने एंड से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड योर स्टेटस विल बी कनेक्टेड ओवर हियर। मेकिंग सेंस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this was it related to your entire this configuration, okay, but इसका बहुत ज्यादा चार्जेस लगेंगे, तो let me delete all those things, okay. So अभी what you have to do, you have to come to resource group, okay. resource group के अंदर आओ, delete resource group, so I'll do S2 SRG, ओके। सो अब ये डिलीट ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेगा। चलो दूसरा एक कॉन्सेप्ट अभी बताते हैं, ठीक है। So we are seeing about your public IPs and all those stuffs कि मेरे पास public IP है, they are of your two types. So let me draw that and let me make the things very clear for you. Okay, just give me 1 minute. Huh?
Okay, so I'm back. So what I was discussing, हाँ हम लोग अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा आईपी के बारे में, पब्लिक आईपी वगैरह उसके बारे में. Okay, so let me come to home. Let me select. Okay. So generally जो हमारे पास आईपी होते हैं ना, so ये Azure के आईपी है, Azure IP. So ये जो Azure IP defined होता है ना, they are defined with the help of your SKUs. So हमेशा देखे होंगे SKU ये एक नया टर्म है, right? So AWS में भी ऐसा कुछ टर्म नहीं था. Okay, so this is your SKU के basis पे defined होता है. Okay, these are some additional functionality given by your Azure. अब ये SKU दो टाइप का होता है. Okay, these are of your two type. One is your standard and the other one is your basic. So we have something called as your basic, and then we have your standard. So ये basic और ये standard. अब ये basic और standard में difference क्या क्या है? Okay, we have to understand that, and then we'll be able to make things more clear. तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये तो अपना डिलीट होते रहेगा. We'll create a resource group आगे, एक दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे. इसका नाम दे देते हैं सपोज टेस्ट रिसोर्स ग्रुप, एंड विल कीप इट सेंट्रल यूएस. नेक्स्ट टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट. ओके, दैट्स फाइन. अभी हम क्या करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस. ओके, विल गो ओवर हियर. तो देखो ये एक आईपी एड्रेस क्रिएट हुआ था, वो वर्चुअल मशीन, वो पर्टिकुलर यस ये वीपीएन गेटवे का आईपी था, राइट? सो ये क्रिएट हुआ था. अभी हम एक पब्लिक आईपी क्रिएट कर. सो व्हेनेवर आई ट्राई टू क्रिएट पब्लिक आईपी, तो देखो यहाँ पे कौन सा हमको क्रिएट करना है, आईपी वर्जन 4 क्रिएट करना है, वर्जन 6 क्रिएट करना है. तो जनरली दो टाइप के आईपी हमको मिलता है, एक वर्जन 4 आईपी, एक वर्जन 6 आईपी. तो वर्जन 4 आईपी कैसा दिखता है, वर्जन 6 आईपी कैसा दिखता है, आई टेल. सो इफ यू गो टू माय आईपी एड्रेस, आई थिंक हमको वर्जन 4 ही इधर मिलेगा, वर्जन 6 नहीं देगा, बट लेट मी चेक. नॉट डिटेक्टेड. तो ये जो नेटवर्क है ना जिससे हम कनेक्टेड है, सो दे आर नॉट गिविंग वर्जन 6 आईपी. ओके, बट हम अगर अपने सिस्टम से अपने नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे, देन आई शो यू दैट. तो देखो, नाउ आई जस्ट डू अ रिफ्रेश. देखो ये मेरा IPv वर्जन 6 किस हिसाब से दिख रहा है, राइट? सो दिस इज माय IPv वर्जन 6. ओके, एंड दिस इज माय IPv वर्जन 4. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे को किस टाइप का आईपी चाहिए, IPv वर्जन 4 चाहिए कि 6 चाहिए कि बोथ चाहिए. तो हम बोल रहे हैं IPv वर्जन 4 खाली मेरे को चाहिए. अभी देखो यहाँ पे ना दो SKU है, एक है स्टैंडर्ड, एक है बेसिक. अगर स्टैंडर्ड लेते हैं ना, तो ये देखो मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि जोन रिडंडेंट, कौन से जोन में रखना है, थर्ड जोन में रखना है, फर्स्ट जोन में रखना है, सेकंड जोन में रखना है. इफ आई चूज बेसिक, ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे को केवल रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है, नॉट अ जोन. ओके, सो यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड, ओके, सो ये जो होता है ना बेसिक का केस में, हमारे पास क्या होता है कि ये केवल इसको वन जोन में रखता है. जो भी मेरा ये जो होता है मेरा आईपी जो होता है वो दैट इज केप्ट ओनली अंडर योर वन जोन. बट अगर हम इसको स्टैंडर्ड रखते हैं, ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीपल जोन्स वगैरह में भी ये जोन्स का सेलेक्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आता है. अगर हम जोन रिडंडेंट रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट जोन में भी इसका आईपीस को रखेगा. तो कभी एक जोन में मेरा क्रैश हुआ, so we will be getting the those IP addresses from the different zone also. Okay, so generally production के case में we have to do what we have to go ahead with your SKU as your standard.
ओके। अब लेकिन ना प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जैसे प्रॉब्लम अभी रिसेंट के एक केस में हुआ था व्हेन वी वर डिप्लॉइंग एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनका क्या था पता है, उनका एक इस हिसाब का आर्किटेक्चर था, उनका एक कंपनी था। ओके, सो इसके दो फाउंडर थे। ओके, सो यहाँ पे दो फाउंडर थे, टू फाउंडर्स। ओके, एंड इसका जो था ना, यहाँ पे केवल एक सब्सक्रिप्शन था। क्या था? वन सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन के अंदर वो लोग के पास रिसोर्स ग्रुप थे, एंड उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया। दो फाउंडर्स थे। अभी क्या हुआ, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। तो फिर ये लोग क्या बोले कि नहीं, हम लोग मर्जर करेंगे, आप एक पार्ट ले लो, हम एक पार्ट ले लेंगे इसका। ओके, सो दे एग्रीड। अब इनको क्या करना था ना, एक सब्सक्रिप्शन से अनदर सब्सक्रिप्शन पे एज्योर माइग्रेट करने थे, मतलब सर्वर्स माइग्रेट करने थे इनटू योर डिफरेंट एज्योर अकाउंट। तो ये एक एज्योर अकाउंट है, राइट। तो ये एक एक फाउंडर क्या बोला, आप अपने रिसोर्सेज यहाँ से ले जाओ, हम यहाँ से वो रिसोर्सेज को डिलीट कर देंगे, एंड आप अपना बिलिंग का देख लो, हम अपना बिलिंग का देख लेंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ा, ये सब्सक्रिप्शन व्हिच इज ऑन टू अ डिफरेंट टेनेंट। नाउ व्हाट इज दिस टेनेंट, मतलब एक टाइप से समझो, इट इज ए एज्योर डिफरेंट सेपरेट एज्योर अकाउंट ओनली। और वो जो एज्योर अकाउंट है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट टेनेंट। ओके, तो उसका एक सेपरेट एक आईडी मिलता है, उसको बोलते हैं टेनेंट आईडी। तो ये एक एज्योर अकाउंट था सेपरेट, और ये एक एज्योर अकाउंट है डिफरेंट सेपरेट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर भी एक सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, राइट। यहाँ पर भी वन सब्सक्रिप्शन रहेगा, सब्सक्रिप्शन रहेगा। ओके, बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ ना इसके साथ, कि ये लोग क्या किया था कि यहाँ पे जो भी सर्वर डिप्लॉय किया था, इस वो बोल रहे थे एज इट इज मेरे को इधर माइग्रेट कर। तो हम तो सर्वर माइग्रेट कर देंगे, बट व्हाट अबाउट द पब्लिक आईपी? ओके, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस के केस में वो बोल रहे थे कि जो भी बेसिक पब्लिक आईपी होता है, दोज आईपीज कैन बी माइग्रेटेड। ओके, जो भी बेसिक आईपी होता है, दोज आईपी कैन बी माइग्रेटेड, बट इंटायर जो अगर स्टैंडर्ड आईपी होगा, दैट कैन नॉट बी माइग्रेटेड। ओके, सो लकीली उनका क्या था, बेसिक आईपी था, आईपी एड्रेस जो था उनका बेसिक था, सो वी वर एबल टू माइग्रेट दैट। ओके, अदरवाइज what you have to do, you have to connect to Azure customer support. Okay, now वो लोग फिर क्या करते हैं ना, they get the entire details। फिर जाके वो क्या करते हैं, ये सर्वर, ये जो सब्सक्रिप्शन है और ये जो सब्सक्रिप्शन है, वो पर्टिकुलर आईपी को दे लॉक इट फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड फिर वो कुछ पावरशेल कमांड वगैरह हम लोग को देते हैं। वो कमांड को हम फायर करते हैं इनटू वेयर, इनटू माई एज्योर का क्लाउड शेल। जैसे यहाँ पे है ना हमारे पास, ये क्लाउड शेल है ना हमारे पास, यहाँ पे हम वो कमांड को फायर करते हैं। देन व्हेनेवर वी यूज टू फायर दैट कमांड, वो जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो माइग्रेट करके इधर आ जाता है। ओके, so this can be done, so ultimately you will be able to understand when you will be working into the industry। तो ये जो इंडस्ट्री का यूज केस होता है कि हमको इसको स्टैंडर्ड में रखना है। ओके, तो देखो, द पब्लिक आईपी एसक्यू मैच विद द एसक्यू ऑफ द लोड बैलेंसर विद व्हिच इट इज यूज्ड। तो अभी एक और भी इसका ना यूज केसेस है। अभी यूज केसेस क्या है, देखो। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर बीच बीच में आपका वॉइस फेड हो जाता है, मतलब थोड़ा लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। ओके ओके, लेट मी कनेक्ट टू माय ओरिजिनल नेटवर्क, मे बी दिस इज। You are able to hear me, right? यस सर। Yeah, actually, I ordered a mic also today, so maybe you'll be getting a very good quality of audio maybe from the next time. Okay, but that's fine. Okay, चलो, अभी हम क्या बोल रहे थे कि एक और भी चैलेंज होता है ये आईपी के साथ। सो देखो क्या होता है ना, जनरली जब हम लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास लोड बैलेंसर होते हैं, राइट। सो सपोज दिस इज माय लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि ये ट्रैफिक को रिसीव करेगा, और ये अपने बैकएंड में जो भी, यहाँ पे एक बैकएंड पूल हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। ये बैकएंड पूल में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स वगैरह रखते हैं। ओके, तो लोड बैलेंसर का काम क्या है, जो बैकएंड पूल में मेरे पास सर्वर्स हैं, जिसपे मेरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो सारे एप्लीकेशंस पे मेरे को क्या होना चाहिए, ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, राइट। इट इज नॉट लाइक कि मेरा सारा रिक्वेस्ट जा रहा है किसको, मेरा इसी को, टू योर टू ए सिंगल सर्वर, राइट। तो जैसे ही मेरा ट्रैफिक इंक्रीज होगा, तो फिर क्या होगा, मेरे सर्वर्स को वापस से ये विथ अ प्रॉपर
वे ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? टू योर लोड बैलेंसर इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टू दिस सर्वर्स इन द बैकएंड। अब इसका फंडा क्या है पता है? ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड, इसको भी एक आईपी देना पड़ता है। okay? अगर इसका स्टैंडर्ड आईपी है, तो मेरे जो बैकएंड में जितने भी सर्वर्स होंगे ना, वो सब का स्टैंडर्ड आईपी हमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आईपी होना चाहिए। तो अगर मान लो किसी का बेसिक आईपी है, तो दैट यू कैन नॉट इंटीग्रेट इट। क्या कर सकते हो? उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोग देखें कि जो मेरा स्टैंडर्ड होगा उसमें हम लोग जोन रिडंडेंट भी रख सकते हैं, या कोई एक स्पेसिफिक जोन में भी हम अपने आईपी एड्रेस को डाल सकते हैं, राइट। और ये जो बेसिक होता है, इसमें जो होता है बेसिक हमारा, सो दिस इज लाइक, यहाँ पे मेरे को केवल रीजन सेलेक्ट करने बोलते हैं। आई डू नॉट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो वो सब चीजें इसमें डिफरेंस होता है। और भी कुछ कुछ डिफरेंस है विच गोइंग डाउन द लाइन वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी देखो जो भी एज्योर के केस में, एडब्ल्यूएस के केस में जो भी पढ़े होंगे, सो इट इज गोइंग टू हेल्प देम अलॉट। तो जनरली क्या होता था ना, कि सपोज मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट किए, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के बाद उसमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किए। रिसोर्स, ये मेरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, सपोज दिस इज माय सब्सक्रिप्शन। ओके, ये सब्सक्रिप्शन के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? सपोज आई विल क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, और ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? सपोज आई विल क्रिएट अ वीनेट। ओके, और ये वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? आई विल बी क्रिएटिंग मल्टीपल सबनेट्स। तो सपोज ये मेरा एक सबनेट 1 हुआ और ये सबनेट 2 हुआ। ओके, सो अभी ये जो सबनेट्स होंगे इसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। ओके, अब ये जो वर्चुअल मशीन होगा हमारा, तो जनरली क्या होता है कि व्हेनेवर वी यूज टू डिप्लॉय अ वर्चुअल मशीन, तो क्या करते हैं हम लोग? हमारे बैकएंड में क्या होता है? एज्योर का हाइपरवाइजर होता है, राइट। ये एक फिजिकल मशीन्स है। ये फिजिकल मशीन्स कहाँ रखे हुए? एज्योर के डेटा सेंटर। एंड देन एज्योर का अपना हाइपरवाइजर होता है, राइट, which is called as your Hyper-V, right? तो अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि which hypervisor does Azure use, तो it is your Hyper-V. Okay, so backend में वो hypervisor क्या यूज करते हैं? Hyper-V hypervisor. Okay, so उसका काम क्या होता है कि वो जो भी फिजिकल उनके पास मशीन्स रखे हुए हैं ना, उसको वो क्या कर देता है? वर्चुअलाइज कर देता है, ताकि हम उसको यूज कर पाए, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये मेरा फिजिकल डेटा सेंटर है, एंड सपोज ये मेरा हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। ओके, अभी मेरे को क्या करना है? देख, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। तो अभी सपोज करो मेरे को ना ये वाला एक हाइपरवाइजर मिला हुआ है। ओके, HV1 सपोज, और इसके अंदर क्या है? मेरे वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉयड है। ओके, मतलब ये एक सेक्शन है जिसपे मेरे वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड है। तो अभी क्या होता था ना, AWS के केस में, जब भी हम मशीन को शट डाउन करते थे, whenever we used to shut down a machine, ये क्या होता था कि ये वर्चुअल मशीन जो होता था ना, अपना हाइपरवाइजर को छोड़ देता था। क्या करता था? हाइपरवाइजर को छोड़ देता था। इसलिए क्या होता था ना कि जब भी शट डाउन होता था हमारा मशीन, सो वी वेर नॉट चार्ज फॉर दैट EC2, या फिर जो भी सर्वर्स होता था उसके लिए हमको चार्ज नहीं देना पड़ता। ओके, बट इन केस ऑफ योर एज्योर, इसमें भी सेम होता है। ओके, कि जब भी हम शट डाउन करेंगे, तब फिर क्या होगा? वो हाइपरवाइजर छोड़ देगा, एंड देन we will not be charged for that. Okay, but there is a difference क्या है ना, कि जब भी AWS के मशीन को you will be shutting it down from the console में जाकर के उसको स्टॉप कर दोगे, then you will not be charged. Okay, even जब हम AWS मशीन के अंदर भी है, okay, और अंदर जाकर के हम वहां पे पावर ऑफ कर देते हैं, मशीन को शट डाउन कर देते हैं, तब भी वो क्या करता है? हाइपरवाइजर का जगह छोड़ देता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट चार्ज्ड फॉर दैट। बट एज्योर के केस में ना उल्टा होता है। एज्योर के केस में उल्टा नहीं होता, मीन्स थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हेनेवर वी यूज टू स्टॉप आवर वर्चुअल मशीन बाय गोइंग इनसाइड द वर्चुअल मशीन, जैसे हम वर्चुअल मशीन के अंदर चले गए एंड वहां पे हम कमांड डाले पावर ऑफ, तो मतलब कि क्या हुआ? वो शट डाउन हुआ अल्टीमेटली। ओके, तो शट डाउन हुआ तो मेरा स्टॉप्ड स्टेट में तो आ जाएगा। मेरा वर्चुअल मशीन जो भी हम कंसोल में देखेंगे, दैट विल बी ऑन टू योर स्टॉप्ड स्टेट। बट प्रॉब्लम क्या होगा पता है? यू विल बी चार्ज फॉर दैट। क्यों? क्योंकि जब हम वर्चुअल मशीन के अंदर जा करके उसको स्टॉप करते हैं, देन वो हाइपरवाइजर छोड़ता नहीं। ओके, जब हाइपरवाइजर नहीं छोड़ेगा तो यू विल बी चार्ज फॉर दैट। तो वर्चुअल मशीन, यू एज्यूम कि दैट वर्चुअल मशीन इज रनिंग ऑन, यू विल बी चार्ज फॉर दैट। लेकिन अगर
हम बाहर से उसको स्टॉप करते हैं फ्रॉम द कंसोल, तब देखना एक ऑप्शन आता है स्टॉप्ड एंड डी एलोकेट। इट मींस कि वो वर्चुअल मशीन अपना जगह छोड़ देता है। ओके, आई शो यू हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स। अभी तो ये डेफिनेशन समझ में किसी को आया होगा, हाफ किसी को थोड़ा आया होगा, बट मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो अभी हम क्या करते हैं, आई गो टू योर वर्चुअल मशीन पार्ट, लेट मी डिलीट दिस पार्ट, आई कम टू योर वर्चुअल मशीन सेक्शन। एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन क्या होता है उस केस में। अभी एजूर वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। कौन सा रिसोर्स ग्रुप, टेस्ट रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे हम दे देते हैं VM1। ओके, सेंट्रल यूएस, यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडेंडेंसीज, दैट इज फाइन। पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं सिलिकॉन। ओके, पासवर्ड। ओके, so that's fine. Okay, next desk networking ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर लेगा, that's fine. Default management tax event kit। अब क्या हुआ, मेरा वर्चुअल मशीन डिप्लॉय, राइट? I'll go to resources। ओके, अभी क्या करते हैं, I'll connect to this server। SSH पे जाते हैं, I'll come over here, I'll go to Excel, I'll paste। सॉरी। तो देखो ये मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया, राइट? इफ आई विल डू sudo sco, इफ आई विल डू cd, तो मेरा सर्वर से कनेक्टेड है, कंट्रोल है। अभी आते हैं हम यहाँ पे, इफ आई विल गो टू माय VM1। ओके, तो इफ आई विल गो टू होम, इफ आई विल गो टू वर्चुअल मशीन सेक्शन, तो देखो इसका स्टेटस कौन सा है, मेरा अभी रनिंग। ओके, रनिंग है, मतलब कि एट द बैक एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये मेरा एक हाइपरवाइजर, एच सपोज HV1 पे ये मेरा वर्चुअल मशीन रनिंग। ओके, अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कमांड फायर करते हैं, पावर ऑफ। ओके, तो ये देखो क्या हुआ, इसको पावर ऑफ कर दिया, मतलब इट इज नाउ क्लोजिंग। ओके, शटिंग डाउन। अगर सपोज करो, अगर हम इसको वापस से कनेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। थोड़ा सा टाइम दो इसको। बेकार व्यू हो गया ये। देखो ये कौन से स्टेट में आ गया, इट इज इन स्टॉप स्टेट।
तो अभी हम क्या किए, हम वर्चुअल मशीन के अंदर जा करके उसको स्टॉप कर दिए, पावर ऑफ कर दिए, तो वो स्टॉप हो गया। तो इट इज इन विच स्टेट, स्टॉप स्टेट। तो जब भी ये स्टॉप स्टेट में आता है ना, तब ये हाइपरवाइजर HV1 को लीव नहीं करता है। तो इल से कि सर स्टॉप तो कर दिए, पैसे तो लगने नहीं चाहिए, बट एट द एंड यू विल बी चार्ज फॉर दिस। ओके, एट द एंड मेरे को बिल आ जाएगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस व्हिच आई एम टेलिंग यू। तो हमेशा से कस्टमर को क्या बोलना है ना, क्योंकि लोग AWS में भी काम करते हैं, AWS के केस में क्या होता है, स्टॉप कर देने से अंदर भी दैट मशीन इज स्टॉप एंड यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट। बट इन दिस केस इट इज अ डिफरेंट। ओके, यहाँ पे जब तक ये स्टॉप लिखा रहा मीन्स ये हाइपरवाइजर छोड़ा नहीं है, यू विल बी स्टिल चार्ज्ड। ओके, बट AWS के केस में ऐसा नहीं होता। बट अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्टॉप। ओके, जब स्टॉप पे क्लिक करोगे यू विल सी यस, डू यस, यहाँ पे स्टेटस ऑब्जर्व करना। ओके ओके, अगर हम अभी रिफ्रेश करते पेज को, सो यू सी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ योर स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड। इट मींस ये स्टॉप भी कर दिया सर्वर को एंड ये हाइपरवाइजर को छोड़ भी दिया। When you do like this, then only you can say that you are not charged for this particular virtual machine. Otherwise, you will have to pay for this. Okay? But इसका कुछ कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज क्या है? Okay, let us try to understand that. देखो, जब भी हम स्टॉप कर देते हैं, ओके, व्हेनेवर वी यूज्ड टू स्टॉप फ्रॉम द कंसोल, तो वो एक स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड स्टेट आ जाता है। इट मींस कि वो हाइपरवाइजर छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम whenever we'll go and whenever we'll click on start, ओके, तो अब ये क्या करेगा ना, बैकएंड में चेक करेगा कि क्या मेरे पास कोई हाइपरवाइजर खाली है क्या। अगर मान लो सारे हाइपरवाइजर फुल हो गया राइट, क्या होगा, सारे हाइपरवाइजर फुल हो गए, तो उस केस में फिर क्या बोलेगा पता है, यू विल गेट एन ऑप्शन लाइक कि वी डू नॉट हैव कैपेसिटी। जैसे हम लोग को मिल रहा था ना एज्योर के केस में, जब हम सेंट्रल इंडिया में डिप्लॉय करने जा रहे थे, तो देन दे वर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर VM साइज इज आउट ऑफ द कैपेसिटी, राइट, फॉर द एज्योर डेटा सेंटर। तो सिमिलरली अगर मान लो कोई वहां पे अगर उस टाइप का वर्चुअल मशीन यूज कर रहा होगा, अगर वो स्टॉप करेगा, तब एक मेरे को हाइपरवाइजर खाली मिलेगा, तब हम उस पे अपना क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे डीलोकेट कर दोगे, ओके, whenever you are delocating it means कि वो हाइपरवाइजर छोड़ दिया। जब ये छोड़ दिया, whenever you will do a start, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई हाइपरवाइजर खाली होंगे, then only my virtual machines is going to run on to that. अदरवाइज फिर क्या होगा, मेरे वर्चुअल मशीन उस पे रन नहीं करेंगे, हमको क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। मीन्स जब तक कोई यहाँ पे खाली नहीं करते, तब तक आई विल हैव टू वेट। रिसेंटली आई वाज सेइंग यू, एक हमारे पास कस्टमर थे जिनका हम लोग एज्योर पे काम किए हुए थे, ओके, एंड वो कस्टमर क्या किए थे, दे हैव नॉट पेड अस दे हैव नॉट पेड अस, ओके, उनका जो मंथली बिल होता है, दे हैव नॉट पेड अस। तो हम लोग क्या किए थे ना, उनका सर्विसेज को स्टॉप कर दिया। सो इंटायर कंट्रोल वी वर हैविंग, ओके। तो जब जैसे ही हम यहाँ पे डीएलोकेट कर दिए, तो ओके, सो इंटायर उनका सर्विस जैसे बंद हुआ, दे हैव पेड इट इमीडिएटली, ओके, क्योंकि सबका सर्विस इंपॉर्टेंट है, राइट, किसी का साइट डाउन नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करती है, इमीडिएटली हम लोग को क्या करती है, पे कर दी पेमेंट। पेमेंट जैसे ही डन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि उनका साइट को वापस से स्टार्ट करने गए। जब स्टार्ट करने गए, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम। क्या बोल रहा था, कैपेसिटी नॉट अवेलेबल, मतलब हाइपरवाइजर वाज रिजर्व, कोई और ले चुका था। तो अभी क्या होगा, अल्टीमेटली स्टॉप तो कर दिए, बट आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट। अराउंड इट टुक अराउंड 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद फिर कोई कैपेसिटी खाली हुआ होगा, इमीडिएटली वी वर क्लिकिंग ऑन स्टार्ट, क्लिकिंग ऑन स्टार्ट, इमीडिएटली देखे कोई खाली हो गया, तुरंत हम लोग को एलोकेशन वहां पे मिल गया। सो इट हैपेंड इन दैट वे। बट ये सब चीजों से अगर बच के चलना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to go inside your virtual machine and then you have to do power off from there। तो पावर ऑफ कर दोगे तो हाइपरवाइजर थोड़ी छोड़ेगा, भले उसका चार्ज लगते जाएगा, बट हाइपरवाइजर वो छोड़ेगा नहीं। जब हाइपरवाइजर नहीं छोड़ेगा,
तो you will be paid. You will have to pay for that. Hypervisor नहीं छोड़ा मतलब you will have to pay for that. But हमको क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा. मतलब हाइपरवाइजर मेरे लिए रिजर्व है. हम स्टार्ट जब भी करेंगे at any point of time, my system is going to get started. ओके तो ये छोटा छोटा चीज है विच यू नीड टू टेक केयर. कंपनी में जाओगे अगर कभी ऐसा होता है कि यू हैव सम क्लाइंट्स हु आर नॉट पेइंग या फिर कुछ कारणवश हमको उसका सर्वर को स्टॉप करना है, ओके देन यू डू इट बाय गोइंग इनसाइड दैट. ओके उस केस में क्या होगा, हाइपरवाइजर वो छोड़ेगा नहीं. जब वो छोड़ेगा नहीं तब जब भी हम स्टार्ट करेंगे माय सर्वर इज गोइंग टू गेट स्टार्ट. अगर सपोज करो कि वो क्लाइंट का जिसका हम सर्वर को डाउन कर दिए थे, सर्वर को स्टॉप कर दिए थे फ्रॉम आउटसाइड, ओके तो फिर वो डीएलोकेट हो गया था, हाइपरवाइजर छोड़ दिया था. अगर मान लो कि वो कैपेसिटी फुल रहता है 1 महीने के लिए, सो डू यू थिंक कि दैट वुड बी अ ग्रेट चॉइस, ग्रेट सॉल्यूशन गिवन बाय अस? नो. तब तो फिर दे वुड हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस कि यार ये लोग मेरा गड़बड़ कर दिया सारा चीज. The same thing, you have to keep these things in mind. But AWS के केस में we do not have any such stuffs. But उनके केस में कैपेसिटी का इश्यूज भी नहीं होता है. Okay, but always make sure कि AWS में we do not have flexibility of those things. But in Azure we have this flexibility. Okay, but Azure AWS के केस में जब बंद करोगे वो हाइपरवाइजर छोड़ देगा. Okay, so इसीलिए Azure के केस में हमेशा बोला जाता है कि प्रोडक्शन का जो भी होता है okay, you have to use your reserved instances. Okay, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनटू दिस पार्ट. तो रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के केस में क्या होता है ना, वो हाइपरवाइजर मेरे लिए एक फिक्स करके दे देता है. हम उसको बाहर से स्टॉप करें अंदर से स्टॉप करें, आई डोंट केयर. वो रिजर्व्ड इंस्टेंस के केस में मेरे को एक हाइपरवाइजर मेरे लिए वो फिक्स रहता ही रहता. तो दैट इज द रीजन व्हाई मेरे को बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाते हैं. तो हमको क्यू में कभी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा. दैट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज. So I think this will be it for today's guys. Okay. Next day we will be covering some of the more new concepts, okay, and then we'll try to complete the things as soon as possible. So we'll come to test resource group and we'll try to delete this resource. So we'll try test. Okay, so I'll upload the recording as soon as possible, as soon as it is available to me. Okay, so you just check the recordings, try to do this lab also. Okay, because जब तक ये lab नहीं करोगे, you'll not gain the confidence. Okay, and main thing is just keep that particular diagram with you. That is very very important. Okay, so diagram के through you'll be able to understand it more clear. Okay, so this will be it from today's class. If you have anything to discuss, we can discuss. Otherwise, we can wind up. Let me stop recording.